Good evening all. So today's session wasn't good. We made some losses. We actually hit 3 SLs on our trades and we decided not to trade further. So today's session was quite a very range bound session. So there were attempts to break out, there were attempts to break down. Where exactly are the levels where it used to make a reversal, and it usually hit our SL. But by the time it have actually ended the session, with respect to OI data or with respect to the setup for tomorrow, it have formed certain formations, or rather it have formed the data which is indicating a decisive move or decisive momentum to be taking place tomorrow. With respect to Bank Nifty अभी एक upward trending formation में अभी भी trade कर रहा है, right? While it is trending in upward trending channel, Bank Nifty ने आज एक कंसोलिडेटिव मूव देते हुए एक रेंज फॉर्म की है, विच इज़ मेयर 200 पॉइंट्स रेंज, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन सॉर्ट ऑफ बिताया. And while it was trading in this range, it have actually added quite a lot call shorts as well as put shorts. Okay, put shorts still इतने ज़्यादा नहीं है, but call shorts are pretty heavy as compared to put short which has been added today. So we are expecting a bit of decisive day which is to be taking place tomorrow. Why decisive day? That is in perspective or that is in respect to the data which has been formed. अगर यहाँ पर हमें देखें कि 35,500 का जो OI रेजिस्टेंस है वहीं पे हमारा कल का रेजिस्टेंस भी फॉर्म है, और वही हमारा ये जो रेंज है उसका भी रेजिस्टेंस है. सो आप सोच सकते हो कि दिस रेजिस्टेंस इज सॉर्ट ऑफ ट्रिपल रेजिस्टेंस. ये जो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपके एक नहीं, यहाँ पे आपके 3 सॉर्ट ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म्ड है, विच इफ एट ऑल ब्रेक्स आउट, यहाँ पे एक काफ़ी तगड़ी वाली, यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो सकती है. सो विथ रिस्पेक्ट टू लेवल्स, enter long on Bank Nifty above 35,625 levels. Okay, 35,500 being आपका OI resistance. So एक 100 से 125 पॉइंट के करीब आपको वहाँ पे बफर देना चाहिए. So it manages to test and further indicate कि यहाँ पर breakout हो चुका है. Enter long above 35,625 levels with the CEs of 35,700 और at the max 800. ज़्यादा दूर की आप CEs या PEs इस जून सीरीज में एटलीस्ट ट्रेड नहीं कीजिए. With respect to short trade, we will be entering short. Ideally जो levels short के होने चाहिए, that should be somewhere below 34,900, which is quite sort of far at the moment, क्योंकि हमने यहाँ पर closing day 35,400 में, और अगर मैं वहाँ से बोलूँ कि आपको 34,900 के बाद एंटर करने, that will be quite late and that will be quite far to enter into short. But if at all, if you happen to see कि यहाँ पर resistance का टेस्ट हो गया है, which is 35,500, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, rather it is making a bit of fall. And if you see कि यहाँ पे 35,200 का जो लेवल है, अगर यहाँ पर ये इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, then you can enter into aggressive or a bit of risky trade. यहाँ पे the indication further out here will be, एक बार आपने 35,200 के नीचे एंट्री कर ली तो ये 200 पॉइंट तो यहाँ पर फॉल होगा, which will lead बैंक निफ्टी to test the OI support of 35,000 से लेके 34,900. अगर यहाँ पर OI सपोर्ट पर बैंक निफ्टी ने सॉर्ट ऑफ फॉल को होल्ड कर लिया, देन देयर आर प्रोबेबिलिटी कि वो यहाँ से फर्दर अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है. बट अगर यहाँ पर होल्ड नहीं हुआ, देन दैट इज गोइंग टू लीड टू फर्दर पुट शॉर्ट कवरिंग विच इज गोइंग टू पुश बैंक निफ्टी टुवर्ड्स द नेक्स्ट OI सपोर्ट. सो यू कैन एक्सपेक्ट द टारगेट रेंज ऑफ अराउंड 34,600 to 34,500 if at all the OI support of 35,000 is broken and if Bank Nifty continues to trade below 34,900. With respect to OI data, you got 9.6 lakh of a put shorts around 35,000, which is pretty strong, not very strong at the moment looking at the way the call shorts have been added. You got around 13 lakh of a call shorts at 35,500. So quite possible कि अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर OI रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, अगर वहाँ पर बैंक निफ्टी ने फर्दर ब्रेकआउट दे दिया, तो ये जो कॉल शॉर्ट्स है वो आपको फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर कराएंगी, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट दी फर्दर मूव एटलीस्ट टुवर्ड्स 35,800 से लेके 35,950 तक, okay, which is near about 36,000 levels. बट अगर बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉल शॉर्ट 13 लाख के करीब आपके पास यहाँ पर कॉल शॉर्ट्स है, which does have potentials कि बैंक निफ्टी यहाँ पर टेस्ट करते हुए यहाँ पर sort of reversal दे. Okay, so that is something where you can actually watch out for your short trade to be triggered, but only condition कि यहाँ पर बैंक निफ्टी OI रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद यहाँ पर फॉल करे. At 36,000 आपके पास 9.7 लाख के करीब कॉल शॉर्ट्स है, विच आर प्रिटी गुड, बट एक बार 35,500 ब्रीच हो तो 36,000 के करीब हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं या फिर वहाँ के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं.
विथ रिस्पेक्ट टू डेली पैटर्न और बैंक निफ्टी एक अच्छा सा एक ब्यूटीफुल सा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिख चुका है विच इज एट 35,200 के अबाव. सो फॉर बैंक निफ्टी भी इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जस्ट अराउंड 150-100 पॉइंट्स अबाव ट्रेड कर रहा है. आई जस्ट होप कि ये इसे ब्रेक डाउन ना कर दे. यहाँ पर ये रीटेस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पर रीटेस्ट हो चुका है. इट्स जस्ट द मैटर कि ये बैंक निफ्टी कल को थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम दिखा दे, शॉर्ट कवरिंग लेवल्स को ब्रीच कर दे. देन इफ एट ऑल इट मैनेजेस टू ब्रेक दी today's high, then it is quite high probable that बैंक निफ्टी अपने अपवर्ड या फिर फर्दर मोमेंट की तरफ यहाँ पर बैंक निफ्टी बढ़ जाएगा. एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट टू सी बैंक निफ्टी टू बी टेस्टिंग द लेवल्स ऑफ 36,500 से लेके 37,000. मूविंग ऑन टू द सेटअप फॉर निफ्टी. निफ्टी हैज़ बिन ट्रेडिंग अ बिट वीक कंपेयर टू बैंक निफ्टी. निफ्टी हैज़ ऑलमोस्ट इंडिकेटेड कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आ चुका है, बट निफ्टी ब्रेकडाउन करने के बाद भी उसको सॉर्ट ऑफ अग्रेसिवली यहाँ पर फॉल को एक्सटेंड या फिर फॉल को ड्रैग नहीं कर पाया. निफ्टी में मेजरली दी वीकनेस दैट हैज़ कम दैट इज़ प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम रिलायंस एट द मोमेंट. रिलायंस में जो फॉल होने के बाद जो एक्सपेक्टेड रिकवरी लोग कर रहे हैं वो अभी तक आई नहीं है. विथ रिस्पेक्ट टू लेवल्स ऑन निफ्टी फॉर टुमारो, वी विल बी लुकिंग टू लॉन्ग ऑन निफ्टी अबाउ 15,930 बिकॉज इस रेंज में एंटर करना विल बी क्वाइट रिस्की. बिकॉज यहाँ पर अगर हम एंट्री कर भी लेते 15,860 के ऊपर, वी नो कि निफ्टी में वी गॉट गुड अमाउंट ऑफ कॉल शॉट्स एट 15,900 जो कि 34,000 lakhs के करीब है, जो कि which is going to act as a quite strong resistance at the moment. So we will be entering into Nifty somewhere above 15,930 के करीब, which is sort of breaking today's high. So अभी कल को देखते हैं कि निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है. Looking at the chart it is quite इंडिकेटिव कि कल को एक डायरेक्शनल मूव दिख सकता है अभी के लिए. आई एम नॉट श्योर कि वो गैप अप या गैप डाउन के साथ होगा या फिर साइडवेज ओपनिंग होने के बाद हम वो मोमेंटम कैच कर पाएंगे. सो एंटर लॉन्ग ऑन निफ्टी अबाउ 15,930 ओनली बिकॉज यहाँ पर एक ओआई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग की आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी विच विल इजीली पुश निफ्टी टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 16,000 विच विल बी ऑल टाइम हाई. विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट ट्रेड भी थोड़ा सा दूर यहाँ पर फॉर्म होकर आया है. सो आइडियली इफ यू हैपन टू से निफ्टी टू बी ट्रेडिंग बिलो 15,770 वहाँ पर हम शॉर्ट ट्रेड के लिए एंटर कर सकते हैं फॉर द नियर एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट्स टू बी अराउंड 15,700 से लेके 15,680 के करीब. कि दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द निफ्टी लेवल्स. चार्ट चेक फॉर रिलायंस में जैसे मैंने बोला कि अगर रिलायंस 2080 के नीचे अगर रिलायंस ट्रेड करना शुरू करे देन वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट द लेवल्स ऑफ अराउंड 1960 से लेके 1940 के करीब, which is going to get tested, which is going to be the level where I am going to invest into Reliance. Looking at Reliance में one level that I have been monitoring since Friday, that is 2080. If at all that gets broken and if Reliance begins to or rather continues to trade below 2065, that is where it is going to indicate कि हमें Reliance पे 1970 से लेके 1950 विच इज़ 1970 से लेके 1950 के जो सपोर्ट लेवल्स है वो रिलायंस पे हमें टेस्ट होते हुए दिखने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी हियर. ओके, नाउ if it makes a bounce from here, that is where I'm going to enter into Reliance from an investment perspective, not from a trading perspective. But if at all it breaks down further, then we are going to watch out for further 300 points fall on Reliance. But it's quite unlikely to happen. The most probable case that I see, Reliance will probably break down 2080 support levels. It will be dragging it further. It will be testing these levels around, which is between 1960 to I see somewhere around 1930 or 1940 odd. If at all it bounces from this level, we are going to enter into Reliance from an investment perspective. So that is all with respect to the setup for tomorrow. If you want to join the live channel, where I suggest live trades with live explanations, with live logic and with live guidance, you can join the open channel. The link is shared in the description box. Then you can contact me and get the relevant details for you to join the live channel. Also, please do subscribe to this YouTube channel for daily setups and further updates. Till then, thank you very much. See you tomorrow on the ground. Bye bye.